میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ تو آئیں میرے ساتھ مل کر دیکھیں خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب، اور اس کا تیسرا باب ہے، اور تیسرے باب کی 15ویں اور 16ویں آیات ہم پڑھیں گے۔ مکاشفہ تیسرا باب 15ویں اور 16ویں آیات۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت۔ آئیں دعا کریں۔ مہربان خدا، قادر مطلق خدا، تو آج اپنے لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اور خداوند زندہ خدا، تو نے خداوند مجھے لیا ہے تاکہ اے خدا تو مجھے استعمال کرے اور میرے منہ سے بولے اور کلام کرے۔ اے خدا بخش دے کہ جو کچھ تو کہنا چاہتا ہے تیرے لوگ دھیان کے ساتھ سنیں، اور آج جو بھی حکم تو جاری کرے اس کو سن کر اس کو عمل بھی کرے، اس پر عمل بھی کریں، اور خداوند سب پر تیرا خاص فضل ہو، یسوع مسیح کے نام سے۔ میرے عزیزو، آج میں جس عنوان پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، مسیح اس کلیسیا سے کہتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، اور یہ شاباش نہیں، یہ برکت نہیں، بلکہ یہ ایک شکایت ہے۔ اور اگر مسیح جو ہے وہ کسی سے شکایت کر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ خدا اس سے خوش نہیں ہے۔ جب خدا کسی سے خوش ہوتا ہے تو پھر آسمان سے خود پکار کر کہتا ہے کہ میں تجھ سے خوش ہوں، میں تجھے برکت دیتا ہوں، میں تجھے پیار کرتا ہوں، تو میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ شاباش نہیں ہے۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اس کلام کے ذریعے سے خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو آج چرچ میں نہیں آئے ان کے ساتھ بھی خدا بات کرنا چاہتا ہے۔ اور خدا یہاں پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی بات کر رہا ہے۔ خدا یہاں پر شخصی طور پر بھی مخاطب ہے، ایک شخص سے بھی اور زیادہ لوگوں سے بھی مخاطب ہے۔ اس لیے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ تیرے اور تو ہے۔ اور جب تو کی بات کی جاتی ہے، جب تو کہا گیا ہے، تو یقین جانیں اور ایمان رکھیں کہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ ذرا بتائیے،
किस से? कलीसिया से नहीं, मुझसे। कहें मुझसे। कहें मसीह तो मुझसे बात करना चाहता है। फिर कहें, अब कहें मसीह तो मेरे खानदान से बात करना चाहता है। मसीह तो मेरे खानदान से बात कर रहा है। मसीह तो मेरी कलीसिया से बात कर रहा है। आमीन। किस किस का ईमान है कि आज खुदावंद जो है इस मैसेज के जरिए से रेमा कलीसिया से मुखातिब है? किस किस का ईमान है? आज खुदावंद उन लोगों से बात कर रहा है जो ठंडे हो चुके हैं, जो नीम गर्म है। खुदावंद को सरगर्म लोगों की जरूरत है। और याद रखें, खुदावंद सरगर्म लोगों को प्यार करता है। गो के सभी लोग कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बेहतर हूं और मैं कलीसिया का रुकन हूं। लेकिन याद रखें, कलीसिया में खुदा ठंडक को पसंद नहीं करता। और हम अपने काम तो करते हैं, अपने घरों को तो संवारते हैं, लेकिन सबसे पहला और जरूरी जो काम है वो खुदावंद के घर को संवारना है। और मेरी बात याद रखें और गौर से सुनें। मसीही इसलिए पैदा नहीं होता कि अपना घर बनाए। मसीही की बुलाहट ये नहीं है कि अपना घर तामीर करे। मसीही की बुलाहट ये है कि वो खुदा के घर की तामीर करे। मसीही बुलाया हुआ है। मसीही कौन है? मसीही बुलाया हुआ है। और हर मसीही की कौल होती है। हर मसीही जो है वो खुदा के घर में खुदा के लिए काम करने के लिए पैदा हुआ है। और मसीही जो है वो आम बंदा नहीं होता। मसीही खास बंदा होता है, वो शाही काहिनों का फिरका और खुदा की खास उम्मत का बंदा होता है। और जो खास होता है उसको खास और स्पेशल काम करना होता है। दूसरों से अलग वो काम करना होता है। वो खुदा के लिए बुलाया गया होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इसके बरक्स काम करते हैं। आज हमने गौर करना है, आज हमने देखना है कि हम कहां पर हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैं कहां पर हूं, मेरा घराना कहां पर है। हम इस बुलाहट को, खुदा की इस कॉल को सेकेंडरी दर्जा देते हैं, दूसरा दर्जा देते हैं। लेकिन हमारा जो दर्जा है वो अपने काम को, अपने घर को दिया जाता है। अगर मैं यहां पर आपसे सवाल करूं और कहूं कि ये चेयर्स क्यों खाली हैं, तो लोग सवाल के जवाब देंगे, जी मुझे मेरे घर में ये काम था, फला काम था। जैसे एक मालिक ने ब्याह किया और बुलाए हुओं को बुलाया कि वो आए और ज़ियाफत में शामिल हों, लेकिन बहुत सौ ने मजदूरी का इजहार किया और बहानाबाजी की। मैंने नया ब्याह किया है, मैं नहीं आ सकता। मैंने बैलों की जोड़ी खरीदी है, उनको आजमाने जाता हूं। मैंने जमीन खरीदी है, मैंने उसका कुछ करना है, मैंने फला काम किया है, मैं मसरूफ हूं, मैं नहीं आ सकता। इसी तरह अपनी जिंदगियों में हम भी करते हैं। हम खुदा के काम को हम
مسیح کی خدمت کرنے کو اور اس کی خوشخبری پھیلانے کو دوسرا درجہ دیتے ہیں۔ اور جب ہم ان باتوں کو دوسرا درجہ دیتے ہیں تو کیا خدا ہمیں پہلا درجہ دے گا؟ نہیں، خدا ہمیں بھی دوسرا درجہ ہی دے گا، ہم پہلے نمبر پر نہیں ہوں گے۔ جہاں ہم خدا کو رکھتے ہیں خدا ہمیں اس سے بھی نیچے لے جائے گا، کیونکہ ہم خدا کے گھر کی فکر میں نہیں ہیں، ہم اپنے گھر کی فکر میں ہیں۔ اگر ہم خدا کے گھر کی فکر کریں تو یقین کریں خدا ہمارا گھر بنائے گا۔ اگر ہم خدا کے گھر کی فکر نہیں کرتے تو ہمارا گھر بھی جو ہے وہ نہیں بنے گا، اور ہمارا گھر کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں نے خدا کے گھر کی فکر کی، خدا نے ان کے گھر کو تعمیر کیا، خدا نے ان کے گھر کو بنایا اور خدا نے انہیں تخت پر بٹھا دیا، لیکن جنہوں نے خدا کے گھر کی، خدا کی کال کی اور خدا کی بلاہٹ کی فکر نہیں کی، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارا پہلا جو کام ہے ریما کلیسیا کا، جو چرچ کام آتے ہیں، جو کلیسیا کے کاموں میں، خوشخبری کے کاموں میں اتنا زیادہ حصہ نہیں ڈالتے، اور جو اپنے پاسبانان کا کہا نہیں مانتے، اس پلپٹ سے آوازیں دی جاتی ہیں کہ چرچ آئیں، اس پلپٹ سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے گھر میں آئیں، لیکن ہم سنتے نہیں، ہم غور نہیں کرتے۔ تو یہ نہ میری آواز ہوتی ہے، نہ یہ پاسٹر یونس کی آواز ہوتی ہے، نہ یہ پاسٹر برکت کی آواز ہوتی ہے، یہ خدا کی آواز ہوتی ہے۔ اور خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ذریعے سے کسی نہ کسی طرح سے خدا جو ہے وہ پکارتا ہے، بلاتا ہے، آواز دیتا ہے، لیکن ہم منہ موڑ کر چل دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ اسی طرح لودیکیا کی کلیسیا کو جو ہے وہ آج اسے شکایت کرتا ہے، اور کسی زمانے میں پولس رسول کے زمانے میں یہ کلیسیا جو تھی یہ قائم کی گئی، اور یہ کلیسیا ایک وقت میں سرگرم کلیسیا تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ پولس رسول یہاں پر گیا ہے کہ نہیں گیا، لیکن جب ہم کلسیوں کا خط اور اس کے چوتھے باب کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر پولس رسول جب کلسیوں کی کلیسیا کو خط بھیجتا ہے تو ان کو کہتا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ لودیکیا کی کلیسیا میں بھی پڑھا جائے۔ اس وقت یہ کلیسیا جو تھی یہ سرگرم تھی، یہ خدا کو پیار کرنے والی کلیسیا تھی، لیکن اس کے 40 سالوں کے بعد یا 50 سالوں کے بعد یہ کلیسیا جو تھی یہ ٹھنڈی پڑ گئی، یہ کلیسیا جو تھی یہ سرگرم نہ رہی، اور یہ کلیسیا جو تھی یہ سرد کلیسیا ہو گئی۔ اور یوحنا رسول جو اس وقت پتموس کے جزیرے میں قید تھا، تو خدا نے یوحنا کے ذریعے سے اس کلیسیا کو میسج دیا، اور اس جگہ پر 7 کلیسیائیں تھیں، اور یہ آسیا کا صوبہ تھا، اور یہ صوبہ جو ہے آج کل ترکی میں ہے، اور یہاں پر 7 کلیسیائیں تھیں، اور یہ کلیسیا جو تھی یہ آخری کلیسیا تھی، اور یہ 7 کلیسیائیں قریب رہتی تھی، تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، اور خداوند جو ہے اس کلیسیا سے ناراض ہے، اور خداوند اس کلیسیا سے یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ میرے عزیزو، خدا ہمارے کاموں کو بھی جانتا ہے۔ یہ بات بالکل نہ بھولیں کہ خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں
तो खुदा जानता है। अगर हम दुआ नहीं करते तो खुदा जानता है। अगर हम चर्च आ रहे हैं तो खुदा को पता है। अगर हम चर्च नहीं आ रहे तो खुदा को पता है। अगर हम खुशखबरी के काम को फैलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो खुदा को पता है। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो खुदा को पता है। इसलिए हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते, हम बहाना नहीं कर सकते कि खुदा को मेरी मजबूरियों का पता है। अगर हम अपनी मजबूरियों का बहाना करते रहेंगे तो खुदा नहीं मानेगा। हमने मजबूरियों को पीछे छोड़कर खुदा को पहला नंबर देना है। हमने खुशखबरी को पहला नंबर देना है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन जो है वो हमारी मजबूरियों को, हमारी कमजोरियों को, हमारी रुकावटों को दूर करने पर कादिर है। और खुदावन कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। और खुदावन जो है वो एक आह भरता है और कहता है काश कि तू सर्द या गर्म होता। काश कि तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। जो नीम गर्म है वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना खुदा की तरफ हैं ना शैतान की तरफ हैं। वो दोनों तरफ फंसे हुए हैं। शैतान को भी मौका देते हैं, इब्लीस को भी मौका देते हैं, खुदा को भी मौका देना चाहते हैं। वो इब्लीस को भी नाराज करना नहीं चाहते और खुदा को भी नाराज करना नहीं चाहते। लेकिन मेरे अजीजों, मत्ती के अंजील के 6 बाब में लिखा हुआ है कि हम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। कैसा हो सकता है? मुमकिन है ऐसा? क्या अगर हम दोनों मालिकों की खिदमत करेंगे तो खुदा पसंद करेगा क्या? नो, नेवर, ही विल नेवर लाइक इट। वो इसे पसंद नहीं करेगा। वो कहेगा या तो फिर उसकी तरफ चला जा या फिर मेरी तरफ आ जा या फिर मुझे बिल्कुल ही छोड़ दे, गुनाह करता चला जा और फिर एक दिन मैं तेरी अदालत करूंगा, या फिर हर चीज मुकम्मल तौर पर छोड़कर मेरे पास आ जा। इस आज के इस कलाम में जो तिलावत आपके पास आपके सामने की गई, यहां पर भी तौबा का मैसेज दिया गया है। खुदा यीशु मसीह जो हैं वो जब हम 19वीं आयत को पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं बस सरगर्म हो और तौबा कर। इस कलीसिया को तौबा करने की जरूरत थी और खुदा यीशु मसीह जो है इस कलीसिया के लिए अफसोस का इजहार करते हैं। एक और बड़ी सख्त वार्निंग जो इस कलीसिया को दी गई है वो यूं है कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। इस शहर जो लौदीकिया का शहर है, इस शहर के करीब ही पानी के चश्मे थे, गर्म पानी के चश्मे थे, और ये पानी जो था वो शहर में आते आते ठंडा हो जाता था। और इस पानी में कुछ ऐसे अज्जा शामिल हो जाते थे कि जब वो पानी पिया जाता था, वो पानी मुंह में डाला जाता था तो क्या आती थी? उबकाई आती थी। और इस कलीसिया की भी जो हालत थी इस तरह की हो गई थी कि क्या आती थी और जो था उबकाई आती थी। और खुदावन जो है वो कलीसिया को खबरदार करता है कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और ये बड़े सख्त अल्फाज हैं और ये एक तंबीह भी है। और जब खुदावन हमें अपने मुंह से निकाल देगा और जब खुदावन हमें अपने आंख की पुतली ना रखेगा और जब वो हमें रद्द कर देगा तो भाइयों और बहनों हमारा क्या हश्र होगा,
हमारी क्या हालत होगी, हम कहां जाएंगे, हमारा क्या बनेगा, हम कहां पर छुपेंगे जाकर, हम कहां पना लेंगे। तो जब खुदा किसी को मुकम्मल तौर पर छोड़ देता है, जब खुदा जो है वो किसी को मुकम्मल तौर पर रद्द कर देता है, तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। आज रेमा कलीसिया और कलीसिया पाकिस्तान को खुदा कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और जब कलीसिया मुंह से निकाल फेंकी जाएगी, खुदा से जुदा कर दी जाएगी, तो फिर इसका क्या हाल होगा। और एक बड़ी कमजोरी इस कलीसिया में यह थी कि यह मगरूर कलीसिया हो गई थी। अगर हम इसकी 16वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा है, 17वीं आयत का, तो यहां पर लिखा है, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है। कहते हैं कि इस शहर में दौलत बहुत ज्यादा थी और ये एक अमीर शहर था, और यहां पर कपड़े की सनत बहुत ज्यादा थी और इनके पास दौलत थी, और ये अपनी दौलत पर भरोसा करते थे और मगरूर हो गए थे, किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। हम भी बाज़ औक़ात ऐसे ही हो जाते हैं। जब रुपया पैसा आ जाता है, जब खुशहाली आ जाती है, तो हम खुशहाली को खुदा की बरकत जानना शुरू कर देते हैं। बाज़ घरों में आजकल यही मसला चल रहा है। बाज़ पास्टर्स के घर में भी यही मसला चल रहा है कि जब वो खुशहाल हो गए तो फिर कहा कि खुदा ने बरकत दे दी है, ये खुदा की बरकत है। फिर लोगों को हम बताते फिरते हैं कि हमारे पास खुदा की बरकत बहुत है, लेकिन शायद अंदरूनी तौर पर, अपनी खानदानी तौर पर वो दुआ भी नहीं करते, वो खुदा के कलाम का मुतालिया भी नहीं करते, वो खुदा के कलाम को तरजीह नहीं देते, वो खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं, वो खुशखबरी के काम को करते नहीं। तो ये शहर भी ऐसा ही था। ये कहते थे कि हम खुदा के लोग हैं, इसलिए खुदा ने हमें बरकत दी, हम बड़े मालामाल हैं। और ये खुदा के काम करने में सुस्त थे, खुदा के काम करने में सर्द थे, बहुत ही ठंडे हो चुके थे। एक सर्द कलीसिया वो होती है जो मसीह के साथ शख्सी वफादारी के बारे में बेहिस और बिल्कुल गाफिल हो जाए। ये ऐसी कलीसिया होती है जो खुदा की कलीसिया की खिदमत करने में बेदिल और काहिर होती है। ऐसी कलीसिया दुनियावी मयारों और रवैयों के साथ समझौता कर लेती है और खुदा की बादशाही के मुशाबा होने के निस्बत जल्द अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में ढल जाती है। मेरे अजीजों, और ये बात बड़ी ख़तरनाक है। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस बात पर गौर करें, क्या हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में ढलते चले जा रहे हैं? क्या हम दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं? लेकिन मेरे अजीजों, ये लोग दौलतमंद तो थे, लेकिन एक जो रूहानी दौलत थी, एक जो असली खुदा की दौलत थी, उससे ये खाली थे। और इस शहर की एक बात और थी, यहाँ का जो सुरमा है, सुरमा जो आंखों में लगाते हैं, वो बड़ा मशहूर था। और ये सुरमा जो था वो दूसरे ममालिक में और सारी दुनिया में सप्लाई होता था। लेकिन गो के ये सुरमा दूसरों को सप्लाई करते थे, देते थे,
तो भी ये रूहानी तौर पर अंधे थे। इनकी रूहानी आंखें जो थीं वो बंद हो चुकी थीं, ये देख नहीं सकते थे। इसलिए खुदावन जो है इस कलीसिया को वार्निंग देता है कि तेरे पास लोगों को की बीनाई ठीक करने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए तू सुरमा तो बांटता है, लेकिन जो मेरा सुरमा है, जो मेरी बीनाई है, वो कहाँ है? वो तो तुझ में है नहीं। तो ज्यादा जरूरत किस बात की है? ज्यादा जरूरत उस सुरमे की नहीं, ज्यादा जरूरत जो है वो रूहुल कुद्स के सुरमे की है। ज्यादा जरूरत जो है वो इस सुरमे की है। अगर इंसान के पास दौलत हो और खुदा के कलाम की दौलत ना हो, अगर रूह का मसा ना हो, तो उसकी ये दौलत जो है वो किस काम की है? अगर किसी के पास लगाने के लिए, चेहरे पर लगाने के लिए मेकअप का सारा सामान हो और वो अपने चेहरे को तो खूबसूरत बना ले, लेकिन खुदावन के सामने उसका चेहरा भद्दा हो और दागदार हो, तो उसके किए हुए मेकअप का क्या फायदा? उसकी पहनी हुई पोशाक का क्या फायदा? और लोगों को जो कपड़े पहने जाते हैं उसको दिखाने का क्या फायदा? वो तो लोग देखते हैं और फिर लोग जो हैं वो जाकर भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने लिबास को खुदा के लिए तैयार करते हैं, जब हम अपने लिबास को खुदा का लिबास बनाते हैं और रूहुल कुद्स का लिबास पहनते हैं जिसे खुदा देखता और पसंद करता है, तो फिर मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमें पसंद करता है। और हमें किस चीज की जरूरत है? मैं इस चीज की परवाह नहीं करता कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे पसंद करें या ना करें। सच में कोई मुझे पसंद करे या ना करे, दुनिया में कोई मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं इस बात को तरजीह देता हूं कि खुदा मुझे पसंद करे, खुदा मुझे प्यार करे। और अगर खुदा आपको प्यार करेगा और अगर खुदा आपको पसंद करेगा, तो बात तब है, तब आपके पास कपड़े नहीं भी होंगे, तब आपके पास लिबास नहीं भी होगा, जेवर नहीं भी होगा, मेकअप नहीं भी किया होगा, तो कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्स का मेकअप होगा जिसे खुदा पसंद करता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज इस चर्च को, आज इस कलीसिया को जो मसीह से दूर जा चुकी थी, जो बेगाना हो चुकी थी और खुदा की और उसकी कामों की परवाह नहीं करती थी, वार्निंग देता है कि तौबा कर ले और सरगर्म हो जा। आप में से कितने हैं जो आज सरगर्म होना चाहते हैं? आज रेमा कलीसिया को और कलीसियाए पाकिस्तान को भी सरगर्म होने की जरूरत है। हमें क्यों भेजा गया है? हमें कहां भेजा गया है? हमें किस लिए भेजा गया है? हमें दुनिया के काम निपटाने के लिए नहीं भेजा गया, हमें खुदा के काम करने के लिए भेजा गया है। मेरे अजीजों, आज लम्हा फिक्रिया है, आज सोचने का मकाम है। अगर आपने इस मैसेज पर गौर किया है, तो फिर आज एक बार फिर अपनी जिंदगी में तौबा करें।